ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। We have to study 22nd sloka. स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्च्यताम्। कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्च्यताम्। कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। So in the entire Mandukya Upanishad, one thing has been reiterated, told to us again and again, that in any sense the creation, existence of creation doesn't stand to any reason, any logic. This cannot be. This is only an appearance. From any angle, from any direction you see, the self, the unborn self, is the eternal substratum and nothing has come about from it. What you see is only an appearance because of your ignorance, but the truth is untouched by any of these things and creation is unreal. This has been told. Again, it is mentioned here in this sloka also. थोड़ा इको आ रहा है देखो. स्वभावेन यस्य पुनर्वादिनः पुनर्वादिनः यस्य पुनर्वादिनः. सर आप देख लेना. बास कम करो. हरिओम हरिओम और कम करो. समथिंग प्रॉब्लम. हरिओम और कम करो. हरिओम. ठीक है, पता नहीं. मास्टर कम करो. थोड़ा कम करो. हरिओम. ठीक, बेटर देन दैट. छोड़ दो. यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन अमृतो भावो मर्चतां गच्छति
परमार्थतः जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः स भावः स्वभावतः अमृतः इति प्रतिज्ञा मृषा एव यस्य पुनर्वादिनः. नौ अगेन अकॉर्डिंग टू द आर्ग्युमेंट्स ऑफ द्वैतिन्स, पुनः अगेन यस्य वादिनः, that according to the arguments of द्वैतिन्स, dualists, what does it say? स्वभावेन अमृतो भावः मर्चतां गच्छति. What they say, द्वैतिन्स say that स्वभावेन, by its स्वभाव, that is by nature, this amrita, immortal, becomes mortal. It is transforms. So Srushti is real. So swabhavena, that object which is there, which is immortal, that entity which is immortal by nature, swabhavena amruto bhavaha marchatam gacchati, that it attains mortality. That is this, the next verse also more clarity will come. So this verse and next verse are very important. So what they say that Ajam Brahma is there, accepted. Why do you say the Brahma is Ajaha? Because Veda says so. Veda says, Veda Pramanam, Veda says the Brahman is Ajam. Ajam means unborn. So the unborn Atma, they say it has changed and transmuted, transformed into this creation. So during the creation, it is born. Again after Pralaya, it becomes unborn. It attains a state of birthlessness. That is their argument. So, marchatam gacchati, so it takes birth. And paramarthatah jayate, meaning in reality, that reality, not appearance. Paramarthatah jayate, not appearance. Only Advaitins say the world is an appearance. Okay. But Dvaitins say paramarthatah, but really the creation has come about. That Paramatma, the Ajam Brahma, the birthless self, Atma or Brahma, transformed itself into this Jagat. So this Jagat is real. We don't call it as unreal. See? Marchatam gacchati, meaning Paramarthatah jayate. That is that they say. Tasya pragutpattehe. No. Pragutpattehe sa bhavaha swabhavatah amrita iti pratignya mrusha eva. Now the pratignya is what? The proposition. In that case, what you proposed, that proposition as per the Veda, that tasya, that is of the creation. Tasya, the creation, of the creation. Pragutpattehe, before its born, birth. So what did they say? Srushti se pehle there was unborn, changeless self. सृष्टि के बाद सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ, तो परिणाम होकर ये सृष्टि क्या है? मिथ्या नहीं है, सच्चाई है. सो परमात्मा से ये सारा का सारा सृष्टि उन्हीं से निकला, ये सच है. ठीक है, कहाँ से निकला? उन्हीं से. वो कौन थे? अजब ब्रह्म, अजम ब्रह्म, जन्म रहित परमात्मा. ठीक है. नौ तो इसके परिणाम बाद में यह हुआ. और उनका सिद्धांत क्या है? फिर दिस सृष्टि प्रलय के बाद फिर अजम बनेगा. आप इस सिंपल सरल सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? देयर वाज अ स्टेट बिफोर बर्थ, बाद में इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ. बाद में फिर अंत के प्रलय के बाद फिर सृष्टि में मेरे परमात्मा में प्रलय हो जाए, माने परमात्मा अपने आप को मुझ में ही है ना, अपने में ही
सारा सृष्टि को संभाल लेते हैं, फिर बाद में अजम ब्रह्म, फिर अनबॉर्न ब्रह्मन हो गया। अब देखो आचार्य चेस, इफ यू से दैट अजम प्राग उत्पत्ति है, बिफोर दिस क्रिएशन देर वॉज अजह अनबॉर्न सेल्फ, इफ यू एक्सेप्ट दैट, इसका मतलब क्या है? स्वभावतः अमृत इति प्रतिज्ञा मृषा एव। देन प्रपोजिशन गिवन बाय द वेदास that Brahman by nature is unborn, that proposition goes wrong. अब कहाँ रही? बदल तो गया ना. You cannot say unborn self is born is a contradiction. Number one. तो इस सृष्टि से पहले ये परमात्मा अजम था, बर्थलेस रहा, वो गलत हो गया. that प्रतिज्ञा वाक्यम, that becomes wrong statement. It is not true. Because if it is really Ajam, then how can it be transformed into this Jagat? This is a contradiction is there. So before the creation becomes manifest, that entity was Ajam, birthless, changeless. This proposition goes wrong. It cannot remain. So that means what? If you really say that this entire entity has become this Jagat and transformed, etc., then we can never call him as immortal. How can we call immortal? When he has become immortal, changing. See, Mrusha eva. Katam tarhi krutakena amrutaha tasya bhavaha. Now, how is it that become that attains its amruta bhava, still it remains in it, when it is constantly changing and subjected to transmigration? How can that entity be immortal? It cannot be. There is a contradiction in your thinking. Then उसको तो फिर मत कहो कि अजम मत कहो. फिर उस परमात्मा को don't refer the Brahman as Ajam. If you refer Ajam, but you have no guts to say, not to say that Brahman before creation Ajam. Why? Veda says you cannot go against Veda Pramana. Therefore, katham tarhi krutakena amrutaha tasya bhavaha. Because krutakena means for him it is a product. When something has come about, cause and effect is from cause say some effect nikla. Krutakena means that is effect is produced, something effect is produced from it. Then how can that be called as immortal? समझ में आ गया? परमात्मा से सृष्टि निकला. If really effect is produced from the cause, then the cause can never remain as immortal. It cannot be called as immortal. If it really comes about. It is also mortal. See? Saha katam stasyati nischalaha. Moreover, krutakena amrutaha katam stasyati nischalaha. And being in effect, it being in effect, now, how can that stasyati nischalaha continue to remain as stable? ये भी परिणाम होते रहा. Because once effect is produced from a cause, that means cause is transformed itself into effect. Number one. That means the cause is no more immortal. Cause is no more changeless, because cause is changed into effect. And since effect is produced in time, and therefore effect is temporary, so since it is effect, it cannot remain stable, it is also subjected to change. देखो कथम स्थास्यति निश्चलः अमृतः स्वभावः तथा न कथंचित् स्थास्यति आत्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्त्येव. Beautiful. Therefore, it cannot remain in that stable by any means. न कथंचित् स्थास्यति. See how beautiful said. प्रभावः तथा न कथंचित् स्थास्यति. आत्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्त्येव. And therefore, Atmajativadinaha, those dualists who argue that the self is born, the reality, the duality, the creation is real,
द अजम नामा, अजम ब्रह्मा हु इज अजम बर्थलेस बिकेम दिस जगत, जैसा जो आर्ग्यू करते हैं ड्यूअलिस्ट, आत्मा जाति वादिनः, आत्मा जाति मीन्स बॉर्न, आत्मा बॉर्न, सेल्फ बॉर्न, बॉर्न, द आत्मा एलोन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस जगत, ऐसा जो आर्ग्यू करते हैं आत्मा जाति वादिनः, फॉर देम सर्वदा अजम नाम नास्त्येव, देयर कैन नॉट बी एनी एंटिटी फॉर देम, अजम नाम नास्ति एव, फॉर देम देयर इज नो एंटिटी कॉल्ड अजम फॉर देम। अजम करके एक वस्तु उनके डिक्शनरी में हो ही नहीं सकता, उनके लिए अजम करके एक वस्तु कोई नहीं रहता। क्यों? बिकॉज जैसे अजम अजम नहीं रही, इमोर्टल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ये सृष्टि के रूप में परिणमित होकर प्रकट हुआ, सृष्टि निकला उसी से, इसका मतलब वो तो अजम नहीं रहा। अजम माने अनबॉर्न, और अनबॉर्न से बॉर्न कैसे हो सकता है? और आप मानते हैं उस अनबॉर्न को ही इस रूप में जन्म लिया, तो भगवान का ही जन्म इस सृष्टि के रूप में, द्वैत के रूप में प्रकट हुआ, भगवान का ही रूप प्रकट हुआ। न भगवान परिणमित होकर अजम से ये द्वैत जगत बन गया, तो बन गया तो अपने तो वो हो ही नहीं सकता। अजम का मतलब ही अनबॉर्न है, कभी जन्म नहीं लिया, परिणाम नहीं होता। और आप इस सृष्टि को ये क्यों परेशान कर रहे हो आप अपने आप को? क्योंकि सृष्टि को आप मानते हैं कि सही में हुआ सृष्टि, ये सृष्टि सच है, झूठ नहीं है। सृष्टि सच है तो इसका फिर कारण बताना होगा, ये कहाँ से निकला। कारण बताने के लिए तो ढूंढा वेद में एक वस्तु को दिखाई दिया, वस्तु एक वस्तु अद्वितीय, उसको आज कह दिया, तो बोलेगा ये आज यही वस्तु से सारा का सारा सृष्टि निकला, तो अजम था ना। हमारा ये में कहते हैं अजम था, सृष्टि से पहले वो अजम था, बाद में सृष्टि हो गया। आचार्य जी कहते हैं कि जो वस्तु यदि परिणमित होकर एक कारण कार्य बन गया, तो कारण को हम क्या कह सकते हैं? मोर्टल कहना है। माने ये तो इमोर्टल, अमूर्त नहीं होगा। कारण मर गए, कार्य रूप में प्रकट हुआ, कारण में परिणाम हुआ, कारण में परिणाम होकर फिर कार्य के रूप में प्रकट हुआ। जो कार्य के रूप में प्रकट हुआ वो सीमित है, समय में ही है, काल में है, क्योंकि कार्य बाद में आएगा, कारण इससे पहले। तो पहले कारण कार्य बन गया, माने कारण अजम नहीं रहा, नंबर 1, और कार्य भी क्या शाश्वत नहीं है, वो तो बदलता रहता है समय में। तो कारण कार्य में भी कोई निश्चल भाव नहीं है। तो अपने डिक्शनरी में, द्वैतिन्स के डिक्शनरी में अजम करके ये कि कोई चीज या वस्तु कभी नहीं रहता। सो आत्मजातिवादिनः, फॉर दोज हु आर्ग्यू दिस ड्युअलिटी, न कथंचित आत्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्ति एव, अजम करे कोई चीज नहीं है उनके जीवन में। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सी सर्वम एतत् मर्त्यम, तो फिर क्या हुआ? एवरीथिंग जो है सारा का सारा मर्त्यम, एवरीथिंग इज मोर्टल ओनली, नॉट इमोर्टल, मोर्टल। मरण धर्म, कांस्टेंट चेंज। तो इस सृष्टि में कोई ऐसा चीज नहीं है। तो भगवान शाश्वत है या सृष्टि शाश्वत है? कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा बदलते रहते हैं। बट दैट इज नॉट वैदिक थॉट। वेद तो साफ साफ कह दिया अजम। सो उस अजम शब्द को लेकर के आप अपने मनपसंद का कमेंट्री, व्याख्यान करते बैठे हैं। देखिए, अब एक्चुअली मूल कारण अब देखेंगे तो ऐसे ही थोड़ा विचार करेंगे। द्वैतीन लोग माने हम सब लोग, हम तो द्वैत में बैठे हैं ना। जैसे कि अद्वैत को
हम मानते हैं बुद्धि में, द्वैत में व्यवहार करते, द्वैत को मानते हैं। अद्वैत को मानते हैं, द्वैत में बैठे हैं, अनुभव नहीं हुआ ना। तो ये द्वैती लोग जब जब इस सृष्टि के बारे में बात आती है, माने ये सृष्टि मिथ्या है, इसमें डरने की क्या बात है? क्यों मना करते हैं इस मायावाद को? अब इसका मूल कारण आप देखोगे, डर। किसका डर? खुद का अस्तित्व का डर। अब ये सृष्टि नहीं है तो मैं जो कह रहा हूं अंदर से वो भी झूठ है, तो मैं भी झूठ हूं, तो छोटा मैं जो है झूठ हूं। तो एक सिद्धांत को मान लिया, अपने नीचे आग लगा के अपने आप को भस्म में डाल दिया, आग में। तो ऐसा सिद्धांत को हमको नुकसान पहुंचने वाला, हमको ही खुद आग में डालने वाली ऐसे सिद्धांत को क्यों मानना है? देखो, ये डर है। नहीं तो अभी आगे बहुत आएंगे अच्छे चर्चा भी ना। दिस श्लोक एंड दस श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी बात हुई कि व्हाट वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द्वैतिन्स को उनके डिक्शनरी में, उनके मत में, उनके संप्रदाय में कोई एक शाश्वत चीज नहीं रहता। वो कहते हैं कि भगवान शाश्वत है, सृष्टि भगवान से निकला है, और भगवान से निकला तो देन विल हैव क्वेश्चन, कैसे निकला? भगवान ने सृष्टि को बनाया। अब देखो, बनाया, अच्छा बनाया, किससे बनाया? पंच महाभूतों से बनाया। अच्छा, ये पंच महाभूत भगवान से अलग है या नहीं? अलग है। अलग है तो भगवान सीमित हो गया, भगवान परिच्छिन्न हो गया, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई पंचमहाभूत करके एक वस्तु है। अच्छा, नहीं जी, भगवान के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। तो सृष्टि कहाँ से बनी? पंचमहाभूतों से बनी। अच्छा, फिर ये पंचमहाभूत कहाँ से आए? नो, भगवान ही पंचमहाभूत के रूप में है। अच्छा अच्छा, तो भगवान शाश्वत कहाँ रहा? क्यों? शाश्वत माने जो चीज हमेशा के लिए रहता है। तो भगवान खुद ही अपने आप को आकाश के रूप में, थोड़ा अंश जल के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जीवों के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कहाँ से सब आए हैं? प्रकृति सब उन्हीं का। अच्छा, उन्हीं का रूप। तो अपने आप को ऐसा हो गया माने, तो वो शाश्वत कहाँ रहा? वो तो बदल गया। दुख परेशानी। तो भगवान चेंज नाउ हिमसेल्फ इनटू दिस जगत। तो when भगवान himself is changing himself into this jagat, तो where is he, how can he called as eternal? देखिए, नहीं, सारा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा परमानेंट रखा है अपने आप को, थोड़े में बदल रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बदल रहे हैं। बाप रे, सृष्टि बनाया उनके भगवान के अलावा दूसरा वस्तु, अन्य वस्तु उनसे बनाया, तो द्वैत हो गया। भगवान के अलावा और भी चीज़ें हैं, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कोई। अच्छा जी, तो
फिर भगवान ने बनाया तो भगवान शाश्वत नहीं रहा, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब हम सृष्टि के बारे में जब बात करते हैं, कैसे बात करें, क्या है ये? सो अद्वैत वेदांत alone says that ajam remains ajam as Veda. This is an appearance. इस सिद्धांत को मानकर चलेंगे तो अजम अजम ही है, सृष्टि का व्यापार होता रहता है, वो मिथ्या है। सो किसी कोई श्रुति वाक्य को बाध नहीं होगा, बाधा नहीं पड़ेगी समझ में, गलत समझने में ऐसा कोई नहीं होगा, सही समझने में बाधा नहीं पड़ता। सो देयरफॉर अजम ब्रह्मा द्वैतियों के मन में मत के अनुसार देन कोई भी चीज़ वस्तु अज के रूप में माने अनबॉर्न के रूप में नहीं रह सकता। देखा, हम तो बोल देते भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान से पूछो बनाया कि नहीं, बताएंगे आप। दिस विचार कल भी आएंगे। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। देयरफॉर सर्वम एतद मर्त्यम अतः अनिर्मोक्ष प्रसंग इत अभिप्राय। नो, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, वो भी नहीं होगा। मुक्ति, मुक्ति कहां से, किससे? मुक्ति माने क्या है? हम हमारे हिसाब से माने अशाश्वत से शाश्वत वस्तु। शाश्वत वस्तु है ही नहीं तो मुक्ति कहां से मिलेगी आपको? फंस गए कि नहीं? अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो मोक्ष के बात ही नहीं उठता। मोक्ष माने बंधन से छुटकारा, शाश्वत पद, स्टेट इज देयर, अपरिणाम, दुख रहित। क्योंकि जहां पे परिणाम नहीं होता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, दैट इज द मोक्ष। अब एवरीथिंग बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे तो मोक्ष कहां है? मोक्ष का सिद्धांत भी नहीं होगा, सब सारा बदलते रहते बदलते रहते। अनिर्मोक्ष प्रसंग है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। अब मोक्ष की बात ही नहीं उठता तो सारा वेद निष्प्रयोजन हो जाएगा। फिर देयर इज नो मीनिंग फॉर सुखम एंड दुखम, सब सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मोक्ष नहीं है तो पाप का क्या है, पुण्य क्या है, सब उड़ गया। दुख से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, नहीं, सुख भी शाश्वत नहीं रहेगा। अनिर्मोक्ष प्रसंग। देखो, now atah nirmoksha. Now another question is taken up now, very important question. What is that? Nanu question, अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिः न संगच्छते प्रामाण्यम, न संगच्छते प्रामाण्यम। ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुतिः न संगच्छते प्रामाण्यम। प्रामाण्यम क्वेश्चन मार्क। नाउ देखिए, if this is happening, one doubt is asked by Purva Paksha. What is that? Those scriptures, scriptures, Shastra, Shrutis, those who speak on creation, सृष्टि प्रतिपादिका, सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र श्रुति ही अजातिवादिनः न संगच्छते प्रामाण्यम। अजातिवादियों के लिए, अजातिवादियों के लिए दोज हु से सृष्टि इज अनबॉर्न,
Ajativad. Nothing has come about. For them, for this, what do you call, unke liye, this cannot be treated as a valid praman. Which vakyas? Those Shruti statements speak about Shruti, creation. All the passages which talk about creation in the scriptures are not treated as valid proof by those who propound or advocate or accept the theory of the unborn self, nothing has come about. For them, ये सारा का सारा श्रुतियों के वाक्य में प्रमाण नहीं रही. So that means they can't be treated as valid proof. देखिए, so वेद इज प्रमाणम. ओके, तो वेद में प्रमाण, तो जिसमें क्या हुआ, वेद में भेद आ गया पैसेजेस में. सम वाक्यास आर ट्रीटेड एज प्रमाण बाय सम सेक्शन ऑफ पीपल. जो सृष्टिवादी लोग हैं, जो सृष्टि को एडवोकेट करते हैं, दोज दे से दैट देयर इज क्रिएशन, they will take all those statements of Shruti speaking about creation as valid praman. So जहां जहां सृष्टि के विरुद्ध, सृष्टि को ना मानते हुए जहां जहां श्रुतियों का वाक्य है, स्टेटमेंट्स, they are all not considered as pramana by those who accept सृष्टि as real. एंड जहां जहां स्टेटमेंट्स है श्रुतियों में सृष्टि के बारे में, दो स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड प्रमाण बाय दोज हु एडवोकेट द सेल्फ दैट इज अनबॉर्न. अजम से सृष्टि कहां से होता है फिर? वो तो अजम ही है, तो अजम अजम ही रहेगा, तो इनको प्रमाण नहीं रहेगा भी. तो इसमें भी एक विरुद्ध भाव आ गया ना. एक को मानते हैं तो मन पसंद का मान लो. फिर संगच्छते माने एक एक्चुअली स्पीकिंग एक अल्टीमेट की वेद का अंतिम तात्पर्य निर्णय क्या है, वेद का तात्पर्य क्या है, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा. समझ में आया बात? What is the final declaration or assertion of Veda will be difficult to be analyzed if some section people accept this, some section accept that. Ultimate Veda Praman, Veda becomes a joke now, without any final declaration. समझ में आ रहा है कि नहीं बात आपको? वेद पढ़ लिया, वेद में ऐसा कहा गया, इधर उधर ऐसा कहा गया, इधर ऐसा कहा गया. ब्रह्मसूत्र आचार्य वेद भगवान वेद व्यास भगवान जी एंड अवर आचार्य. सो दिस व्हाट इज द तात्पर्य, अल्टीमेट अंतिम फाइनल तात्पर्य निर्णय, कंक्लूडिंग द फाइनल असर्शन ऑफ वेद. अल्टीमेटली वेद क्या कहता है हमसे? सृष्टि के बारे में वेद का तात्पर्य क्या है? देखिए, एक ही वस्तु के ऊपर एक वस्तु है, उसका स्वभाव या सच्चाई यदि जानना चाहते हैं तो उस वस्तु का सच्चाई क्या एक हो सकता है, दो हो सकता है? एक ही है ना. देखो, अब एक ही वस्तु के बारे में 2, 3, 4, 5 और सब कहो कि यही सच है, यही सच है, ये हो ही नहीं सकता. तो ये पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, so can picture speaking on creation, can't they be treated as valid प्रमाण? तो प्रमाण नहीं रह जाता.
All those statements which speak about creation are not accepted by Ajatavadis. तो इसका भी नतीजा और कुछ निकलता है इससे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब देखिए, नाउ द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट we will see this now. Now let us analyze here and there, then we will see. That means what? See, there are statements in the Shrutis, they which speak about the creation. That's okay, finalized. Now, those statements can be called as real or unreal, reality or unreality of the creation. Some attribute to reality of creation, some say attribute to unreality of creation. But a beautiful point is that when Veda says Saha Bahya Abhyantarohi Ajaha, Ajaha was told. Or Veda says everything has come about from him, उन्हीं से सारा का सारा सृष्टि हुई करके एक वेद वचन इज देयर। नो, सृष्टि बन गया, जहां जहां सृष्टि बन गया करके बात आई, वहां यह नहीं कहा जो बना हुआ सृष्टि सच है या झूठ है। दैट इज लेफ्ट टू योर डिस्क्रिप्शन। थिंक, योर डिस्क्रिप्शन। अब जैसा सोचो। तो इसके पहले नेक्स्ट दिस आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 2 श्लोकास नाउ, नेक्स्ट श्लोका विल कम, थॉट्स हियर एंड दो विल गो नाउ। इसका मतलब क्या है? वी मस्ट, सो द क्वेश्चन इज दैट सी एनी वेद स्टेटमेंट, even though said by Vedas in a particular context, suppose you take 2-3 वाक्य वेद का, इधर उधर का वेद पढ़ लिया, 2-3 वाक्य वेद, इधर उधर का वेद का 2-3 वाक्य पढ़ के सारा वेद का तात्पर्य यही है ऐसा निकालना गलत है। तो क्या करना है? सो सारा वेद का पूरा अध्ययन करके, उस पर विचार करके, उसके बाद हम यदि सोचते हैं, देन वी विल कम टू नो व्हाट कुड बी द वैदिक थॉट। और दूसरी बात है, जस्ट बिकॉज वेदा मेंशन्ड सेम थिंग वन पर्टिकुलर में, ए पोर्शन में something mentioned, but if it is not standing to प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं मिलता है उसका, तो क्यों मानना है? नंबर 1। और प्रमाण मिलने के बाद भी वो प्रमाण भी गलत हो सकती है ना। अब देखिए सृष्टि दिखाई पड़ रही है, हाँ जी, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, तो मान लो ये सच है, नहीं मान सकते हैं। केवल प्रमाण के बल पर आधार होकर, बल का आधार से ही हम कोई भी वस्तु ये सच है करके निर्णय नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब प्रमाण की जरूरी बिल्कुल नहीं है क्या? प्रमाण के बिना विद्या नहीं होती, तो प्रमाण चाहिए। वेद ने कहा तो भी प्रमाण चाहिए। तो इस सच्चाई को जानने के लिए कौन सा प्रमाण का प्रयोग करना है, किस प्रमाण का प्रयोग करने से उस सच्चाई हमारे सामने आ जाते हैं? शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, कुछ चीज़ें 4-5 प्रमाण मिलकर प्रयोग करो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक,
उसमें भी प्रबल प्रमाण आ जाएगा, तो ये एक प्रमाण है, हो गया। प्रमाण के बाद इसके ऊपर भी, हाँ, तो सिर्फ प्रमाण लगा दिया, हाँ लगा दिया, क्या है? अब देखो, जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है वो सच्चाई है, इसके अलावा क्या करना है, वो तो सच्चाई है। इंद्रिय प्रत्यक्ष गोचरम, सच कर सच मानो, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रमाण में भी जो दिखाई पड़ सकता है मगर वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल सूर्योदय प्रमाण है, मगर सच्चाई क्या? नहीं है। अब पृथ्वी स्थायी है, सच्चाई क्या? आपका अनुभव क्या है? प्रमाण क्या है? आपका अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव। घूम रही है क्या पृथ्वी? नहीं घूमती है। सच्चाई क्या है? घूम रही है। अब बताओ, अब प्रमाण को मानते हैं, जैसे अनुभव के द्वारा, प्रमाण के द्वारा जो एक अनुभव मिला आपको, तो अनुभव, अपने अनुभव को मानते हैं क्या इधर? बाप रे। इसीलिए प्रमाण के ऊपर भी युक्तियुक्त होना चाहिए। जो चीज प्रमाण से अनुभव हो रहा है मगर इट डजंट स्टैंड टू रीजन और लॉजिक, नॉट corroborated with logic, by reason, sorry, or logic, it cannot be accepted. So this duality is there, सृष्टि। वेद ने ये नहीं कहा कि वो सृष्टि सही है, गलत है, मिथ्या है, सच्चा है, वो सब नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि सृष्टि बन गया। हमें दिखाई पड़ रहा है, we are seeing this world, therefore it is true. It cannot be. Why? It can't stand to proper reason and logic. Reason. देखिए, थोड़ा सोचेंगे, रीजन लगाओगे, युक्ति लगाएंगे, तो हमको पता लगेगा ये सृष्टि है ही नहीं। तो हर जगह केवल अनुभवी प्रमाण है, गलत है। हर जगह यह प्रमाण ना लागू नहीं है, हर जगह, हर समय, हर जगह ये प्रमाण लागू नहीं होता। मैंने देख लिया तो सच्चाई है, नहीं नहीं। See, therefore, here very clearly says, Acharya says, Badam, you are right. Badam, yes, you are right, sir. It is true. Vidyate Srushti Pratipadika Shrutihi. Now, yes, there are passages, Shrutis, Shruti mantras, Vakyas, where they speak about creation. Badam, accepted. हमने एक्सेप्ट कर दिया। सातु अन्यपरा, but we already told you in the beginning, in the past, that the very purpose of the statements mentioned in the scriptures about the Srishti, it is not meant to prove that there is creation. देखो, सातु अन्यपरा upayah sa avataraya iti avochama. Now we have already mentioned that in the Karika only, 15th sloka mein, that it is only to upaya, to right kind of a means to instill in your brain, in your buddhi, right kind of ideas regarding unity behind the diversity. Diversity is an appearance. उस आइडिया को बिठाने के लिए we spoke about सृष्टि, that we saw exhaustively. हमने बता तो दिया आपको, फिर बार बार क्यों? इदानीम उक्ते अपि परिहारे पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थम प्रति
सृष्टिश्रुति अक्षराणाम आनुलोम्य विरोध आशंका मात्र परिहारार्थौ. Very important statements are all. तो फिर आगे बढ़ेंगे. Then he says that idea is next slok also I am putting some thoughts jumbled up here. See, idea is next slok it may come. Shruti vakyas can be interpreted in either ways. Either way means सृष्टि बन गया. यहाँ पे सृष्टि वाक्य में दिस इज क्रिएटेड. ओके, वेरी गुड. अब वहां पे ये नहीं बताया कि सच है या झूठ है. सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड बाय श्रुति, यू कैन इंटरप्रेट इट आइदर वे. नो दैट इट इज रियल भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट इज अनरियल अपीयरेंस वो भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. सृष्टि ये नहीं बताया. समझ में आ रहा है? हैवी हो गया क्या? एक वाक्य है, ये सच है या झूठ है, इट इज नॉट सेड. सृष्टि बन गया, बहुत अच्छा. ये बना हुआ सृष्टि कैसे बना? इज इट रियली क्रिएटेड और apparently, I mean, as an appearance it is created? That is not mentioned by Veda. जहाँ जहाँ ये सब बात आती है. तो उस वाक्य के पास जब हम वो पढ़ते हैं, then choice is ours. It can be interpreted either way also. No, which interpretation should be accepted? उसके लिए, because Veda said we should not accept as it is. उसका प्रमाण, कौन से प्रमाण से ये इसको समझना चाहिए इस वाक्य को, और डज इट स्टैंड टू रीजन? सो विच इंटरप्रिटेशन स्टैंड टू रीजन? देखिए, एक वन वस्तु इज देयर. लेट अस सी नाउ. दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन. एक वस्तु है, हम सब दूर से देख रहे हैं, बट एवरीबडी परसेप्शन इज डिफरेंट. अब विच परसेप्शन इज करेक्ट? बट देयर मस्ट बी सम परसेप्शन विच इज करेक्ट, नो? Or something is about the truth. Whether these two possibilities, either this way or that way only, the vastu can be understood. But इसमें which interpretation is correct करके इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉजिक, रीजनिंग, so many things we apply. So that to ascertain what is that. Similarly, we have to apply now yukti, reason, to understand to which interpretation this statement of Shruti would stand to reason, can be reasoned out. वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ऋषि मुनियों को यही आया, यही निकाला अल्टीमेट एनालिसिस, दैट सृष्टि कैन नॉट बी. बन तो गया, मगर जो बना हुआ वस्तु सच है या झूठ है? देखिए, नाउ यू सी फॉर एग्जाम्पल hypnotists. Somebody is hypnotized. Okay. Hypnotized, but he sees something Jagat. And some other person is hypnotized for 30 days or 1 month. Somebody is hypnotized for 1 day. Now, would you call the 30 days hypnotism as real?
and one day hypnotization is unreal? समझ में आया बात? सृष्टि बहुत काल से, अनादि काल से दिख रही है तो सच्चाई होना सकता है, होना चाहिए, ये सच्चा हो सकता है, इसलिए लंबी देर से दिख रही है। क्या ये कोई प्रमाण है? सो दिख रहा है, दिखने दो। We have to now apply logic, understanding, pramana. So when you apply to these statements, to this Srushti Vakya, ultimately it is proved, when you analyze, Srushti cannot be real. See? It's very tough to understand. Here is Acharya Idanim. Now, Ukte api parihare. Even though the doubt was handled before, Ukte api parihare, because we handled this doubt, what we mentioned. Ukte api, even though we handled it parihare, विविक्षितार्थम प्रति सृष्टिरिति अक्षराणाम अनुलोम्य विरोधः आशंका मात्र परिहारार्थम. Now to remove these doubts, again the doubts are to be removed. Again they taken up next sloka में, whether सृष्टि श्रुति अक्षराणाम, the passages dealing with creation in the scriptures, whether those passages dealing with creation in the scriptures are anulomya virodha. Are they favorable to the total Vedic thought or opposite to that Vedic thought? Subject matter. Subject matter means antima tatparya nirnaya of Veda, whose final conclusion Veda ke drushtya, subject matter what we are dealing with. Because we deal with this Veda Ajaha. These statements are favorable to the total, in tune with the total understanding, the total thought of Veda, or opposite to it. How do we know whether in tune total thought of Veda or not? I stand to Pramana and Yukti Yukta. Subject, every Vakya of the Veda is subjected to a test. It has to be corroborated with reason, then accepted. So, vivikshitartham prati srushti shruti aksharanam anulomya virodha ashanka matra parihararthau. So, to remove the doubts again, with all those passages dealing with the scriptures, with the creation in the scriptures, whether they are favorable or opposite to the total thought, in order to remove this doubt again, punah chodya pariharau. Again, the doubt is taken up and it is refuted. Next sloka mein. Otherwise, Dvaitian says that why can't we accept it as it is? क्यों? दोनों को मान लो. जहाँ द्वैतिन से जहाँ जहाँ सृष्टि का बात हुआ वहाँ सृष्टि हुआ करके मान लो. जहाँ अजम की बात आती है, अजम आत्मा, उसको अजम करके मान लो, क्योंकि सृष्टि काल में अनेक रूप में प्रकट हो रहा है. सृष्टि के बाद फिर पुनः अजम हो जाएगा, ऐसा मान लो. But it cannot stand to reason. Irrefutable reasons. Therefore, it is said again, Pariharartha, Bhutato vapi
सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्. This we will take up tomorrow. Om पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की.